بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج شہادت العالمیہ کو معادلہ کروانے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ اگر آپ شہادت العالمیہ کی ڈگری کو جو درس نظامی کی یا دورہ حدیث کی ڈگری ہوتی ہے، درس نظامی کی آخری ڈگری، شہادت العالمیہ کو آپ معادلہ کیسے کروائیں گے، ایکویلنس کیسے کروائیں گے، اور اگر آپ معادلہ یا ایکویلنس کروا لیتے ہیں تو اس کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے، یعنی اس سے آپ کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹس کون کون سے ضروری ہوں گے جب آپ معادلہ کروانے کے لیے اپلائی کریں گے، تو ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی شرائط وغیرہ کیا ہیں، یعنی کون سی شرائط کے تحت آپ شہادت العالمیہ کو معادلہ کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے تمام شرائط کو مکمل کرنا ہے، فیس کتنی ہوگی، اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو ویڈیو کو آپ نے ایک تو آن لائن مکمل دیکھ لینا ہے، اور پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو شہادت العالمیہ کے فائدے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ شہادت العالمیہ کو معادلہ کروا لیں تو اس سے آپ کو کیا فائدے ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ نوکریوں یا اسامیوں کے اوپر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، جہاں پہ ایم اے کے مساوی سند مانگی جاتی ہے یا ڈگری مانگی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ سوائے سائنس کے روک کے وہاں پہ چاہے وہ ٹیچر کے لیے ہو، ایجوکیٹر کی ہو، کوئی بھی اسامی ہو جس کے اوپر ایم اے کے مساوی کی ڈگری مانگی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ اس ڈگری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ عربی ٹیچر کے لیے جو اسامیاں آتی ہیں ان پر آپ بالکل ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے عربی کے لیے ہوں یا چاہے اسلامیات کے لیے جو ٹیچر کی ہوتی ہیں، ایجوکیٹر کی ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ اس ڈگری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عربی ٹیچر کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ایک اضافی کورس ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، جو ATTC کے نام سے علامہ اقبال نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یونیورسٹیز تقریباً کچھ نہ کچھ پروگرام بنایا ہوگا جو عربی ٹیچر کو ٹریننگ دینے کے لیے جو ہے تیار کیا گیا ہے، تو وہ 6 ماہ کا کورس ہے، وہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ اس کی بیس پہ عربی کی ٹیچر جاب کے اوپر آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ MPhil اسلامک اسٹڈیز یعنی MPhil اسلامیات اگر کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں دوسرا MPhil MPhil عربی، اس میں بھی آپ MPhil کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ MPhil اسلامک اسٹڈیز کی کافی ساری شاخیں ہیں، جس میں MPhil اسلامک اسٹڈیز قرآن تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، اور بھی کافی ساری ہیں۔ اگر ان کی ڈیٹیل جاننا چاہیں چینل پر ویڈیو ہوگی، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو تمام جو MPhil اسلامک اسٹڈیز کی شاخیں ہیں ان میں سے MPhil اسلامک اسٹڈی قرآن تفسیر میں آپ ایزیلی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، عربک میں بھی لے سکتے ہیں، باقی میں بھی تھوڑی بہت فرق ہوگا ریکوائرمنٹ کا، باقی تقریباً تمام MPhil اسلامک اسٹڈیز میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ MPhil کے متعلق جاننا چاہیں کہ MPhil کیا ہوتا ہے، کیا پروگرام ہوتا ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے عرصے کا پروگرام ہوتا ہے، اور کس طرح اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، چینل پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ MPhil پروگرام سرچ کریں گے تو یا MPhil کیا ہوتا ہے تو آپ کو وہ تفصیلی ویڈیو جو ہے مل جائے گی، اس میں مکمل MPhil کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ MPhil کے بعد پھر PhD کر سکتے ہیں، اسلامیات میں کرنا چاہیں یا عربی کے کسی مضمون میں یا کسی برانچ میں کرنا چاہیں تو وہ آپ ایزیلی جو ہے اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک فائدے تھے، ویسے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اگر آپ وہ تمام تفصیل سے جاننا چاہیں کہ کون کون سے فائدے ہیں، کہاں کہاں یہ ڈگری کو جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے، شہادت العالمیہ کے فائدے کیا ہیں، تو وہ آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں تمام تقریباً فائدے بتائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ عربی اور اسلامیات کے شعبے سے ہٹ کر فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈگری سے، تو اس کے لیے پھر تھوڑا الگ سا پروسیس ہوگا، اس میں پھر آپ نے شہادت العالیہ کو جو ہے معادلہ کروانا ہوگا، وہ معادلہ کس طرح ہوگا اس کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے اس سے، لہٰذا اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور چینل پر بھی ویڈیو موجود ہے، آپ
शहादतुल आलिया के नाम से, मुआदले के नाम से सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगी। उसका तरीका थोड़ा आलमिया के हिसाब से मुख्तलिफ है, लिहाजा अगर आलिया की करवानी है तो फिर वो वीडियो देखें या वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर आलमिया की करवानी है तो फिर ये वाला तरीका जो है ये इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों चीजों में फर्क है, आपने ख्याल रखना है कि अगर आलिया को करवाना है तो फिर वो अलग तरीका होगा, आलमिया को अलग तरीके से मुआदला करवाना होता है। इसकी शराइत क्या है, यानी कौन कौन सी शराइत आपने मुकम्मल करनी है ताकि आपका मुआदला जो है हो सके, फिर इसके बाद आप तमाम फायदे जो है हासिल कर सकें। तो सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी तमाम इसनाद जो हैं, यानी आमा से लेकर आलिया तक, ये 4 इसनाद, आमा, खासा, आलिया और आलमिया, ये 4 इसनाद मुआदले के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो इन चारों इसनाद के दरमियान 2-2 साल का वक्फा होना लाजमी है। यानी मिसाल के तौर पर आमा 2020 में किया तो खासा जो है 2022 में होना चाहिए, आलिया 2024 में, इसी तरह फिर आलमिया 2026 में। तो इस तरह 2-2 साल का वक्फा बनता हो तब जो है आप इन इसनाद को मुआदला करवा सकते हैं। अगर 6 साल कोर्स किया, बाज तालिबात का अक्सर जो 6 साल का कोर्स है उसमें उनके पास आमा की सनद मौजूद नहीं होती, खासा से आलमिया तक होती है, तो वो अपनी आमा की सनद जो है हासिल कर लें। उसका हासिल करने का तरीका क्या है उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, मजीद आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आमा की सनद आपने हासिल करनी है, फिर जब आपकी चारों इसनाद हो जाएंगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी शर्त है कि आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका तारीखी पैदाइश, ये तमाम जो इसनाद के ऊपर दर्ज हैं, ये आपका शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड और इन इसनाद या रिजल्ट कार्ड के ऊपर नाम, वल्दियत या तारीख पैदाइश में कुछ कमी कसर है तो फिर आप उनको पहले दुरुस्त करवाइए कार्ड के मुताबिक, फिर इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी शर्त है कि आपकी असल इसनाद और कश्फ दर्जात जो हैं ये वफाक से तस्दीक शुदा होने चाहिए। असल इसनाद से मुराद आमा से लेकर आलमिया तक तमाम इसनाद जो हैं और इनके तमाम के कश्फ दर्जात ये आपके पास मौजूद हों और इनको आपने अपने वफाक से तस्दीक करवाना है। तस्दीक कैसे करवाना है वो आसान तरीका है, अगर वो जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि कैसे तस्दीक करवानी है तो फिर आप उनको तस्दीक करवा लीजिएगा। इसके बाद अगली शर्त है कि आमा, खासा की सनद जो है इसका आपने पहले अटेस्टेशन करवाना होगा IBC से। तो इन 2 इसनाद का आपने अटेस्टेशन करवाना है। अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर जो है आप अहल होंगे आलमिया को मुआदला करवाने के लिए। इसके बाद अगली शर्त है कि तमाम इसनाद और कश्फ दर्जात की कॉपियां जो हैं वो भी आपने अपने वफाक से तस्दीक करवानी है। तो ये जब आप अपनी इसनाद वगैरह तस्दीक करवाते हैं तो उनके साथ अपनी कॉपीज वगैरह भी भेजते हैं, तो वो इन कॉपी वगैरह को भी तस्दीक करके वापस भेज देते हैं। इसके बाद अगली शर्त है कि आपने एक सील लिफाफा वो अपने वफाक से IBCC के नाम के लिए जो है वो बनवाना होता है, वो भी आपके पास मौजूद होना लाजमी है। तो ये लिफाफा 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 6 माह से पुराना हो जाएगा तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। ये लिफाफा जो है जब आप तस्दीक के लिए अपनी इसनाद वगैरह वफाक में भेजते हैं तो वो आपको साथ में एक सील लिफाफा जो है वो बना के देते हैं। तो इसको आपने सील ही रहने देना, इसकी सील को ओपन नहीं करना वरना ये बेकार हो जाएगा। तो ये लिफाफा आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद अगली शर्त है कि सनद और रिजल्ट कार्ड के ऊपर अगर कोई कोटिंग है, प्लास्टिक कोटिंग है या कोई लेमिनेशन वगैरह बाजुकात हम करवा लेते हैं ताकि हमारी इसनाद जो है महफूज रहे, खराब ना हो, तो वो प्लास्टिक की कोटिंग या जो भी ऊपर लेमिनेशन वगैरह है वो आपने हटा देनी है। सिर्फ और सिर्फ इसनाद और कश्फ दर्जात वो मौजूद होने चाहिए, साफ होने चाहिए। इसके बाद अगली शर्त ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी तस्दीक शुदा, यानी उसकी कॉपी आपने तस्दीक करवा लेनी है। जब वो आप अपनी इसनाद वगैरह तस्दीक करवाएंगे साथ में कॉपीज वगैरह जो ये इसकी भी तस्दीक करवा लीजिएगा। इसके बाद अगली शर्त ये है कि जब आलमिया कर रहे हो, चाहे आप तुलबा हैं या चाहे तालिबात में से हैं, तो आपकी उम्र आलमिया के वक्त कम से कम 20 साल होना लाजमी है। अगर आपकी आलमिया के वक्त 20 साल से कम उम्र है तो फिर आपके लिए मसला बनेगा, लिहाजा फिर आपने अपनी सनाद में उसकी दुरुस्तगी करवानी है। जैसे भी करवाएं, अगर उसका तरीका नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो फिर उसके ऊपर जो है आपकी मालूमात जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये चंद एक शराइत हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। इन शराइत को मुकम्मल करने के बाद फिर आप अप्लाई के काबिल होंगे। अगर इसमें कोई समझते हैं कि कम है या दुरुस्त नहीं है तो फिर आपने उनको मुकम्मल करना है, और दुरुस्तगी दरकार हो तो वो भी करवा लीजिए, फिर आपने अप्लाई करना है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता
हूँ कि अगर आप शहादतुल आलमिया को मुआदला करवा रहे हैं तो अप्लाई करनी है, तो अप्लाई करने के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप अपनी इसनाद को मुआदला करवाना या अटेस्टेशन करवाना हो तो उसके लिए आप हमसे राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह तसल्ली बख्श आपको नताइज मिलेंगे। नंबर आपको व्हाट्सएप नजर आ जाएगा, इस नंबर के जरिए आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह या मालूमात शेयर करके अपनी अटेस्टेशन या मुआदले के लिए जो है अप्लाई करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत कम ही आपको मिलेंगी और बहुत सारे स्टूडेंट इस हवाले से परेशान होते हैं कि हम अपनी इसनाद को कैसे हुकूमती सतह पे कबूल करवाएं या अटेस्ट करवाएं या उनको कैसे वेरीफाई करवाएं। तो बहुत सारे मतलब इस हवाले से तलबा तालिबात परेशान होते हैं। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से एक ही गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आपने आगे अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वाले के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने मदारिस वाले तुलाब के साथ आपने इनको लाजमी शेयर करना है सदका जारिया समझकर, ताकि वो भी इन तमाम मालूमात से फायदा हासिल करें और अपनी इसनाद जो है बर वक्त और तसल्ली से अप्लाई कर सकें। तो अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से तैयार करने हैं ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला कि आपने तमाम जो आपकी इसनाद होगी वो असल और उसके कश्फ व दर्जात जो है वफाक से मुसद्दका तस्दीक शुदा आपके पास मौजूद होने चाहिए। आमा से लेकर आलमिया तक तमाम इसनाद, 4 इसनाद और इनके कश्फ व दर्जात ये आपके पास 4 हैं या 8 जितने भी होंगे कश्फ व दर्जात वो तमाम आपके पास मौजूद होने लाजमी हैं और वो तस्दीक शुदा भी लाजमी होने चाहिए। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपकी तमाम इसनाद और कश्फ व दर्जात इनकी कॉपियां जो हैं वो भी आपने वफाक से तस्दीक शुदा आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स है कि आपकी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी जो है वो 1-2 आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद फीस चालान होता है आलमिया का मुआदले के लिए, तो उसकी फीस जो है इस वक्त 2000 रुपए है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये तब्दील हो जाए, लेकिन फिलहाल इतनी इसकी फीस है। तो वो 2000 रुपए का चालान जो है आपने तैयार करना है। तो वो चालान कैसे होगा, क्या होगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपके पास एक फॉर्म होता है मुआदले के लिए HEC का, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए और वो वफाक से तस्दीक शुदा भी होना जरूरी है। तो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपने मुकम्मल करना है। आप मुकम्मल करने के बाद फिर आप जो है अप्लाई करने की तरफ जा सकते हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने से पहले आपने तमाम इसनाद अपने वफाक से तस्दीक करवानी है। तस्दीक करने के साथ साथ वो आपको एक सील लिफाफा भी देंगे। इसमें तस्दीक के दौरान आपने अपनी इसनाद की कश्फ व दर्जात की कॉपीज वगैरह भी कुछ तस्दीक करवा लेनी है और साथ में वो फॉर्म जो है वो भी तस्दीक करवा लेना है। तो तस्दीक होने के बाद फिर आपने उस फॉर्म को मुकम्मल करना है और उसी के साथ आपको फीस चालान मिलेंगे। वो आपने 2000 रुपए का बैंक में, जो भी बैंक ऊपर लिखा होगा उस बैंक में आपने जमा करवा देना है। फिर उसकी 2 कॉपीज या 3 कॉपीज आपको मिलेंगी। 3 मिले तो 1 आपकी होगी, 2 आप फॉर्म के साथ लगा दें। तो इस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो जब वफाक से तस्दीक शुदा होकर आ जाएं, इसके बाद फिर आपने अपनी आमा और खासा की सनद को IBC से जो है अटेस्टेशन करवानी है और अटेस्टेशन करवाने के बाद जब वो वापस आ जाएंगी फिर इसके बाद आपने आलमिया के मुआदले के लिए तमाम इसनाद और कश्फ दराजात असल और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपने सिवाय सील लिफाफे के, क्योंकि वो आपको IBC में जमा करवाना होता है तो वो वहाँ पे वो जमा कर लेते हैं। फिर आपके पास आलमिया की और आलिया की सनद की कॉपीज वगैरह होंगी, कश्फ दराजात की वो आपने कॉपीज साथ में भेजनी है। शनाख्ती कार्ड भी लाजमी भेजना है। अब आमा और खासा की सनद जो है आप किस तरह अटेस्टेशन करवाएंगे, तो उसके लिए ऑनलाइन तरीका होता है। तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप हमसे राब्ता करके अपनी सनद की अटेस्टेशन की अप्लाई करवा लें तसल्ली बख्श। इसके बाद जब वो अटेस्टेशन हो जाएंगी तो फिर आपने अगला मरहला ये है कि अपनी आलमिया की सनद जो है और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने HEC की तरफ रवाना करने हैं। वो आप
आपको फिर आलमिया का मुआदला सर्टिफिकेट जो है जारी करेगा। अप्लाई का यही तरीका है कि आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह और इसनाद असल वगैरह और जो आपके पास कॉपीज होंगी तस्दीक शुदा वो आपने HEC के दफ्तर की तरफ जो है रवाना कर देनी है बजरिया डाक, और फिर वो कुछ अरसे के बाद आपको असल इसनाद जो है वो वापस कर देंगे, और इसके कुछ अरसे के बाद फिर वक्फे से आपको शहादतुल आलमिया का मुआदला जो है मुआदला सर्टिफिकेट वो जारी कर देंगे। अब मुआदला सर्टिफिकेट का पैटर्न या मतलब किस तरह का होता है तो वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस तरह का पैटर्न या इस तरह का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो पहले मिल रहा है या मिलता था तो ये है, हो सकता है आने वाले वक्त में इसका पैटर्न तब्दील कर दें, लेकिन फिलहाल इसका पैटर्न यही है। तो इस तरह फिर आपको आलमिया का मुआदला मिल जाएगा। फिर आप उसको जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें, जहाँ पे MA के मसावी डिग्री मांगी जाती है या शहादतुल आलमिया के इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर MA अरबी और इस्लामियात की टीचिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने मुकम्मल आलमिया मुआदला करवाने के हवाले से मालूमात शेयर की। मजीद वीडियोस भी हैं प्रैक्टिकल, अगर आप तरीका जानना चाहें कि शहादतुल आलमिया को मुआदला कैसे करवाना है, ये था मालूमाती तरीका। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें लगानी है, किस तरह लगानी है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और आप जाकर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मददगार होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।